اور متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ جلا وطنی ختم کر کے ملک واپس آنے والے بلوچ رہنماؤں کو دیے جانے والے اسکرپٹ میں MKM کا نام شامل نہیں، وہ بھی مجبور ہیں، اس لیے انہوں نے ہم سے ملاقات نہیں کی۔ عزیز آباد کے لال قلعہ گراؤنڈ میں نقیب انقلاب نامی ڈرامے کی تقریب کے موقع پر کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین کا کہنا تھا کہ سندھ اور بلوچستان کی مظلوم بہنوں کے لیے 90 کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں، یہاں پناہ لینے والی خواتین کو ہر ممکن مدد اور تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ جلا وطنی ختم کر کے ملک واپس آنے والے بلوچ رہنماؤں سے MKM کے وقت نے بھی ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن شاید ان کو MKM کا نام شامل نہیں تھا۔ الطاف حسین نے کہا کہ MKM وہ واحد جماعت ہے جس نے بلوچ نوجوانوں کے قتل عام کے خلاف نہ صرف آواز بلند کی بلکہ لاکھوں افراد پر مشتمل ریلی بھی نکالی۔ اور اب آج متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ MKM کے خلاف ریاستی آپریشن کیتا گیا پر حق دی راہ تے چلن والے نے سارے ظلم سہ لیتے۔ بلوچ رہنما اختر مینگل اسکرپٹ کے مطابق ملاقاتاں کر رہے ہیں۔ MKM کے قائد الطاف حسین نے اپنی زندگی تے مشتمل کتاب نقیب انقلاب دی منعقدہ تقریب نال خطاب کردیاں ہوئے کہا کہ ملک وچ میرا وجود برداشت نہیں کیتا گیا تے مینوں قتل کرن دی بھی کوشش کیتی گئی تے ساتھیاں دے کہن تے مینوں جلا وطنی اختیار کرنا پے گئی۔ الطاف حسین نسن والیاں وچوں نہیں ہے، میرے جلا وطن ہون تے دشمناں نے خوشیاں منائیاں۔ MKM دے قائد نے مزید کہا کہ ملک وچ وڈیریاں نے نجی جیلاں بنا رکھیاں نے تے جتھے لوکاں نال انسانیت سوز ظلم کیتا جا رہا ہے، سندھ وچ خواتین نال بدترین سلوک کیتا جاندا ہے۔ اس معاملے تے سب تو پہلا MKM نے آواز بلند کی تے ہن انقلاب دی آواز پنجاب تو نکل کے خیبر پختونخوا تک پہنچ چکی ہے۔ الطاف حسین کا کہنا سی کہ MKM لسانی جماعت نہیں، اس وچ تمام زباناں بولن والے افراد شامل ہیں۔ MKM دے وقت نے بلوچ رہنما اختر مینگل دے نال ملاقات کرن لئی ٹائم منگیا تے سانو کہیا گیا کہ دبئی جا رہے نے جبکہ وہ ہن بھی اسلام آباد وچ موجود نے۔ MKM دے قائد الطاف حسین کا کہنا سی کہ اختر مینگل اسکرپٹ دے تحت ملاقاتاں کر رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ اختر مینگل سے ملاقات کے اسکرپٹ میں ہماری جماعت کا نام نہیں، لیکن پھر بھی ہماری نیک تمنائیں اور ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ بات انہوں نے لال قلعہ گراؤنڈ عزیز آباد میں MKM کی سیاسی جدوجہد پر مبنی ڈرامہ نقیب انقلاب CD کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ الطاف حسین نے کہا کہ اختر مینگل کو پاکستان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں، تاہم ان سے ملاقات نہ ہونے کے باوجود ہم ان کے ساتھ ہیں۔ MKM کے قائد نے کہا کہ ان کی جماعت کے علاوہ کسی اور جماعت نے بلوچوں پر مظالم کے خلاف ریلیاں نہیں نکالی اور نہ ہی آواز اٹھائی۔ بلٹن میں سب خاک میں شامل کروں تھا متحدہ صدر الطاف حسین جاوید چار انہوں نے جماعت انقلاب جو آواز دکن پنجاب ऐं सिंध जे हारनि समेत मुल्क जी कुंड कुछ में पहुंची रहियो आहे। कराची में अज़ीज़ आबाद में नकीब इंकलाब तकरीब के खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन चयो त मुतहदा क़ौमी मूवमेंट के हिक ॿोली ॻाल्हाईंदड़ जी पार्टी न आहे। हुन चयो त मुल्क में वॾेरनि जा ख़ानगी जेल आहिनि जिते मुलाज़िमनि खे क़ैद कयो वञे थो। अल्ताफ हुसैन चयो त खेसि बार बार क़त्ल करण जी कोशिश कई वई पर हुन साथियुनि जे मशवरे ते जलावतनी क़बूल कई। हुन चयो त संदसि जलावतनी ते मुख़ालिफ़ ख़ुशि थिया ऐं चवण लॻा त MKM ख़तम थी वई पर साथियुनि ऐं कारकुननि जी सची नियत सबबि ख़तम थियण खां बची वई। अल्ताफ हुसैन चयो त अॻिते हलण वारा हर ज़ुल्म खे बर्दाश्त करे सघनि था ऐं क़ुर्बानियुनि जे करे ई तहरीक उरूज तरफ़ वधी रही आहे। हुन चयो त MKM कारोकारी समेत हर मुदे ख़ारिज रस्मनि जी मुख़ालिफ़ आहे जॾहिं त कारोकारी इल्ज़ाम हेठि 12 नौजवाननि खे पनाह ॾिनी वई। MKM सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो त मुतहदा जे इनकलाब जो आवाज़ बलोचिस्तान ऐं गिलगित बल्तिस्तान जे जबलनि ताईं पहुची वियो आहे। MKM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि अख्तर मेंगल स्क्रिप्ट के मुताबिक मुलाकात कर रहे हैं। हमारे वक्त से मिलने से इनकार उनकी मजबूरी है। अगर वो मुलाकात नहीं भी करते तो भी बलोचों की हिमायत हम जारी रखेंगे। अपनी जिंदगी पर मबनी किताब नकीब इंकलाब की तकरीब रुनमाई के दौरान कराची लाल किला ग्राउंड में कारकुनों से खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उनकी जमात ने हमेशा बलोचों के कत्लेआम के खिलाफ आवाज उठाई। फारूक सत्तार और बाबर गौरी ने अख्तर मेंगल से मिलने के लिए वक्त मांगा था मगर अख्तर मेंगल और सनाउल्लाह बलोच ने इनकार कर दिया। मैंने साथियों से कहा ये सब मिलने जा रहे हैं, आप भी उनकी सुनिए, अपनी जद्दोजहद की दास्तान बताइए और हम क्या कर सकते हैं वो हमसे पूछिए। बाबर गौरी, हैदर रिजवी व दीगर साथियों ने फोन किए, आप सबसे मिल रहे हैं, हमें भी मौका दीजिए, हम भी कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं। तो कल
رات کو ہمیں جواب دیا گیا کہ ہم ضرور ملتے، بڑی مہربانی آپ کی، لیکن ہم صبح 7 بجے کی فلائٹ سے آج 29 اکتوبر کو روانہ ہو رہے ہیں دبئی۔ الطاف حسین کا مزید کہنا تھا کہ ایم کیو ایم نے بلوچوں کے قتل عام کے خلاف 1 ملین لوگوں کی ریلی بھی نکالی۔ اگر اختر مینگل ملاقات نہیں کرتے تو بھی ان کی جماعت بلوچ عوام کی حمایت جاری رکھے گی۔ دیے جانے پر، انہیں قتل کیے جانے پر اگر پورے ملک میں کسی جماعت نے 1 ملین کی احتجاجی ریلی نکالی تو اس جماعت نے نکالی۔ الطاف حسین نے کہا کہ ان کی جماعت نے ہمیشہ جاگیردارانہ اور وڈیرانہ نظام کی مخالفت کی۔ سندھ میں خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کیا جاتا ہے، جبکہ ان کی جماعت نے کاری قرار دی جانے والی 12 لڑکیوں کو پناہ دی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد بھی بلوچستان کی صورتحال پر فکر مند دکھائی دیے۔ انہوں نے سردار اختر مینگل کی پاکستان آمد کو خوش آئند قرار دیا۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ حق پر چلنے والے ہر ظلم کو برداشت کر لیتے ہیں۔ نقیب انقلاب کے عنوان سے جاری کی جانے والی ڈاکومنٹری کی تعارفی تقریب سے خطاب میں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کہ دولت کی ہیر پھیر نے معاشرہ تقسیم کر دیا۔ انقلاب کی آواز پنجاب کے کھیتوں میں گونج رہی ہے۔ انقلاب کی نوید بلوچستان کے ریگستانوں، ریگزاروں، دور دراز علاقوں میں جگہ جگہ پہنچ رہی ہے، اور اس کی آواز خیبر پختونخوا کی وادیوں میں پہنچ رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ انہیں قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں اور ان کی جلا وطنی پر مخالفین بہت خوش ہوئے، اور کہا گیا کہ ایم کیو ایم تو گئی۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ سندھ میں خواتین پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، ملک میں وڈیروں نے نجی جیلیں بنا رکھی ہیں۔ ان کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ بلوچ رہنما اختر مینگل اسکرپٹ کے تحت سیاستدانوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے الطاف حسین کا کہنا تھا کہ بلوچوں کے قتل کے خلاف ایم کیو ایم نے کراچی میں 1 ملین افراد کی ریلی نکالی، تب کسی اور جماعت میں جرت نہیں تھی کہ وہ بلوچوں کی حمایت میں ریلی نکالتی۔ ایم کیو ایم کے قائد نے کہا کہ اختر مینگل سے ملاقات کے لیے بابر غوری اور فاروق ستار نے رابطہ کیا، جواب ملا کہ دبئی میں ملاقات کرنی، ان کی بجائے اختر مینگل نے نواز شریف اور عمران خان سے ملاقات کری۔ انہوں نے کہا آپ دبئی آ کے ملاقات کر لیں کیونکہ صبح ہی ہمیں جانا۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، ہمارے ساتھیوں نے بھی شکریہ ادا کیا، لیکن آج 29 تاریخ کو جب دیکھا کہ ان سے مختلف لیڈران آج بھی مل رہے ہیں اور کل بھی ملے، اور آج عمران خان بھی ملے، نواز شریف بھی ملے۔ ایم کیو ایم کے قائد کا کہنا تھا کہ اختر مینگل کو جو اسکرپٹ دیا گیا وہ اسی کے مطابق ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن ایم کیو ایم اس پر ناراض نہیں اور ان کی حمایت جاری رکھے گی۔ وہ بھی مجبور ہے، جو اسکرپٹ ملاقات کا انہیں دیا گیا ہے اسی اسکرپٹ کے مطابق ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ الطاف حسین نے کہا کہ وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں، ساتھیوں کی ہدایت پر ملک چھوڑ کر جانا پڑا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے خلاف ریاستی آپریشن کیا گیا، لیکن حق پر چلنے والے کسی سے ڈرتے نہیں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا ہے کہ بلوچ رہنما اختر مینگل کو متحدہ کے رہنماؤں سے ملنے نہیں دیا گیا، وہ اسلام آباد میں اسکرپٹ کے مطابق ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ وہ لال قلعہ گراؤنڈ کراچی میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ بابر غوری، حیدر رضوی اور دیگر ساتھیوں نے فون کیے کہ آپ سب سے مل رہے ہیں، ہمیں بھی موقع دیجیے، ہم بھی کچھ سننا چاہتے ہیں، کچھ سنانا چاہتے ہیں۔ تو کل رات کو ہمیں جواب دیا گیا کہ ہم ضرور ملتے، بڑی مہربانی آپ کی، شکریہ، لیکن ہم صبح 7 بجے کی فلائٹ سے آج 29 اکتوبر کو روانہ ہو رہے ہیں دبئی۔ لیکن آج 29 تاریخ کو جب دیکھا کہ ان سے مختلف لیڈران آج بھی مل رہے ہیں اور کل بھی ملے، اور آج
खान भी मिले, नवाज शरीफ भी मिले, अखवर नरिंद भी मिले और दीगर लोग मिले, वो भी मजबूर हैं। जो स्क्रिप्ट मुलाकात का उन्हें दिया गया है उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट। उधर एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान अख्तर मेंगल इस्लामाबाद में कई सियासतदानों से मिले लेकिन मुत्तहिदा से नहीं मिले, क्योंकि जो उन्हें स्क्रिप्ट दिया गया है उसमें मुत्तहिदा शामिल नहीं। उनका कहना था कि एमक्यूएम ने हमेशा बलूचों के हुकूक के लिए आवाज उठाई है और उठाती रहेगी। लाल किला ग्राउंड कराची में नकीब इनकलाब की सीडी के इजरा के मौके पर एमक्यूएम के कारकुनों से खिताब में अल्ताफ हुसैन ने कहा कि अगर बलोचों के हुकूक के लिए किसी ने आवाज उठाई वो एमक्यूएम है और 1 मिलियन अफराद की रैली भी मुत्तहिदा ने निकाली। उन्होंने कहा कि नकीब इनकलाब ड्रामा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जहद मुसलसल की अक्कासी करता है। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि आज नकीब इनकलाब की पंजाब के खेतों खलियानों में भी गूंज है और इस इनकलाब की नवीद बलूचिस्तान के रेगिस्तानों, रेगजारों, दूर दराज इलाकों में भी पहुँच रही है। बड़ी से बड़ी परेशानियां, दुश्वारियां आग और खून के दरिया उबूर करते हुए अपने सफर को जारी रखते रहें, मरते रहें, शहीद होते रहें, मगर बाकी बच जाने वाले उस पैगामे हक को लेकर चलते रहें तो फिर वो नकीब इनकलाब बन जाया करती है। और आज इस नकीब इनकलाब की गूंज पंजाब के खेतों खलियानों में गूंज रही है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि आग और खून के दरिया उबूर करने और कांटों पर चलने वाली तहरीक शोधा की बदौलत रूज की तरफ जा रही है। तहरीक के खिलाफ फौजी ऑपरेशन किया गया, मगर हक पर चलने वाले हर जुल्म को बर्दाश्त करने की आदत बना लेते हैं। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि उन्हें बार बार कत्ल करने की कोशिश की गई, जिसके बाद साथियों के कहने पर जिला वतन हुए। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अख्तर मेंगल इस्लामाबाद में कई सियासतदानों से मिले। एमक्यूएम के हैदर अब्बास रिजवी और बाबर गौरी ने अख्तर मेंगल से मिलने के लिए वक्त मांगा, लेकिन मुलाकात न हो सकी। अल्ताफ हुसैन ने कहा इसके बावजूद हम बलोचों की हिमायत जारी रखेंगे। हम सुबह जा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो मैंने कहा नाराज होने की जरूरत नहीं है, वो मिले या न मिले उनकी हिमायत थी, जारी रहेगी। वो भी मजबूर है, वो भी मजबूर है। जो स्क्रिप्ट मुलाकात का उन्हें दिया गया है उसी स्क्रिप्ट के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। एमक्यूएम के कायद ने कहा कि मुल्क पे इनकलाब जरूर आएगा और वो वक्त जल्द आएगा जब सब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। जियो न्यूज में वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। एमक्यूएम जे सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो आहे त अख्तर मेंगल खे जेको स्क्रिप्ट ॾिनो वियो आहे उन तहत ई उहो मुलाक़ातूं करे रहियो आहे। फारूक सत्तार ऐं बाबर गौरी साण से राब्तो कयो, जंहिं ते हुन दुबई में मुलाक़ात करण जो चयो। कराची में पंहिंजी किताब नकीब इनकलाब जी मुहूर्ती तकरीब खे लंडन मां टेलीफोनिक खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन चयो त मुल्क में वडेरनि जा निजी जेल्स मौजूद आहिनि। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इनकलाब की नवीद पहुंच रही है। बलोचों के कत्लेआम पर एमक्यूएम ने आवाज उठाई। लाल किला ग्राउंड कराची में नकीब इनकलाब सीडी के इजरा के मौके पर टेलीफोनिक खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए बाबर गौरी और फारूक सत्तार ने राब्ता किया तो कहा गया कि दुबई में मुलाकात कर लीजिए। उनका कहना था कि बलोचों के कत्ल पर 1 मिलियन की रैली किस जमात ने निकाली। अख्तर मेंगल स्क्रिप्ट के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और अख्तर मेंगल की मुलाकात उनकी मजबूरी है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि मेरी जिला वतनी से मुखालिफिन को खुशी हुई, मुझे बार बार कत्ल करने की कोशिश की गई। साथियों के कहने पर जिला वतन हुआ। अल्ताफ हुसैन भागने वालों में से नहीं। एमक्यूएम के कायद ने कहा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट किसी एक जुबान बोलने वाले की जमात नहीं बल्कि हर फिरके और माशरे की जमात है। उनका कहना था कि सिंध में खवातीन के खिलाफ जालिमाना रसूमात राइज हैं। एमक्यूएम कारोकारी समेत हर फरसूदा रस्म के खिलाफ है। हमने कारो करार देने वाले 12 लड़कों को पनाह दी। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की, जिनका कहना है कि दौलत के हेरफेर ने माशरे को तकसीम कर दिया है। मुल्क के हर हिस्से में इनकलाब की आवाज गूंज रही है। कराची में जनरल वर्कर्स इजलास से टेलीफोनिक खिताब करते हुए अल्ताफ हुसैन का कहना था कि मुल्क में वडेरों की निजी जेलें कायम हैं, जहां जालिम और जाबर वडेरे अपने हारियों को मेहनत की उजरत देने के बजाय कैद कर लेते हैं। पसंद की शादी करने वालों को जालिमाना रसूम की भेंट चढ़ा दिया जाता है।
मुत्तहिदा कारोकारी समेत हर फरसूदा रस्म के खिलाफ है। सिंध में खवातीन पर जुल्म किया जाता है। हमने कारोकारी करार दिए गए जोड़ों की शादी कराई। सूबा सिंध में दीगर सूबों की तरह खवातीन के खिलाफ बड़े मजालिम ढाए जाते हैं और जालिमाना रस्म रिवाज और जज्बा सिस्टम है कि अगर कोई लड़का किसी लड़की को, कोई लड़की किसी लड़के को, कोई लड़का किसी लड़के को अगर शरई एतबार से पसंद कर ले और माँ बाप से फरमाइश या पैगाम दे के हम निकाह करना चाहते हैं शरई तरीके से, तो उसका निकाह करने के बजाय जालिमाना रिवायात के तहत उन्हें कारी करार देकर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हक की बात करने वाले ना किसी के सामने झुकते हैं और ना ही किसी से डरते हैं। अल्ताफ हुसैन का कहना था कि अल्ताफ हुसैन भी भागने वालों में से नहीं है। उनका कहना था कि मुल्क के हर गोशे में इनकलाब की आवाज गूंज रही है। पंजाब के खेतों समेत बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकलाब की आवाज गूंज रही है। आज इनकलाब की गूंज पंजाब के खेतों खलियानों में गूंज रही है और इस इनकलाब की नवीद बलूचिस्तान के रेगिस्तानों, रेगिस्तानों, दूर दराज इलाकों में जगह जगह पहुंच रही है और इसकी आवाज खैबर पख्तूनख्वा की वादियों में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बल्दिस्तान, हजारा, गिलगित, बाराचनार, तेरा इस्माइल खां की वादियों में पहुंच रही है। अल्ताफ हुसैन ने बताया कि अख्तर मेंगल से मुलाकात के लिए बाबर गौरी और फारूक सत्तार ने राब्ता किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आमद पर अख्तर मेंगल को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब के साहबजादे अख्तर मेंगल और सना बलूच साहब पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दौरा नहीं बल्कि अदालत, सुप्रीम कोर्ट की अदालत में पेश करने के लिए आए हैं और इस्लामाबाद में क़याम पजीर है। मैं पाकिस्तान आमद पर उन्हें खुशामदीद देता हूँ दिल की गहराइयों से। मुत्तहिदा के कायद का कहना था कि बलोचों के कत्लेआम पर सिर्फ एमक्यूएम ने आवाज उठाई। किसी और जमात में ये हिम्मत नहीं कि बलोचों की हिमायत में रैली निकाल सके। बलोचों के कत्लेआम पर नौजवानों की रिवायत कर दिए जाने पर, उन्हें कत्ल किए जाने पर अगर पूरे मुल्क में किसी जमात ने 1 मिलियन की एहतजाजी रैली निकाली तो इस जमात ने निकाली। बताइए हर तकरीर में तकरीबन बलोचों के लिए अगर तट के आवाज किसी दिलेर के बच्चे ने उठाइए तो वो दिलेर का बच्चा, दिलेर माँ का दिलेर बच्चा कौन है? अल्ताफ हुसैन का कहना था कि एमक्यूएम के खिलाफ रियासती ऑपरेशन किया गया। साथियों के कहने पर जिलावतनी अख्तियार की। जिलावतन हुआ तो दुश्मन ने कहा कि एमक्यूएम खत्म हो गई। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि एमक्यूएम मुल्क में करीब और मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी चाहती है। लंदन से टेलीफोनिक खिताब में एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन की सियासी जद्दोजहद पर मबनी टेलीफिल्म नकीब इनकलाब सीडी का इफ्तिताह करते हुए एमक्यूएम के कायद ने कहा कि हम सिंध में कारोकारी के खिलाफ हैं। उन्होंने जहद मुसलसल की दूसरी किस्त जारी करने पर एमक्यूएम की टीम को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर अल्ताफ हुसैन की सियासी जद्दोजहद पर बनाई गई टेलीफिल्म भी दिखाई गई। जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा है कि मुल्क भर में इनकलाब की सदा गूंज रही है। बलोच रहनुमा मुलाकात करें या ना करें, उनकी हिमायत करते रहेंगे। मोहम्मद अली हफीज के रिपोर्ट।
मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन ने MQM की जद्दोजहद पर बनाई जाने वाली नकीब इनकलाब CD की तकरीब इजरा से टेलीफोनिक खिताब किया। उन्होंने कहा कि पंजाब के खेतों, बलूचिस्तान के रेगिस्तानों, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों और खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाब की गूंज पहुंच रही है। अपने सफर को जारी रखते रहें, कटते रहें, मरते रहें, शहीद होते रहें, मगर बाकी बच जाने वाले उस पैगाम हक को लेकर चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें, तो फिर वो नकीब इनकलाब बन जाया करती है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बल्लोच रहनुमाओं अख्तर मिंगल और सनाउल्लाह बल्लोच ने उन लोगों से तो मुलाकात की जिन्होंने बल्लोचों पर मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद नहीं की, लेकिन बल्लोचों पर जुल्म के खिलाफ लाखों अफराद की रैली निकालने वाली MQM के रहनुमाओं से मुलाकात नहीं की। वो मुलाकात करें या ना करें, बल्लोचों की हिमायत करते रहेंगे। हर तकरीर में तकरीबन बलोचों के लिए अगर कट के आवाज किसी दिलेर के बच्चे ने उठाई है तो वो दिलेर का बच्चा, दिलेर माँ का दिलेर बच्चा कौन है वो? MQM के कायद का कहना था कि सिंध में खवातीन पर जुल्म हो रहा है, कारोकारी के इल्जामात लगाकर कत्ल किए जा रहे हैं। MQM ने कारी करार दिए गए जोड़ों का निकाह करवाया। अगर आप एक दूसरे को पसंद करते हैं, शरई तौर पे बाकायदा निकाह करना चाहते हैं और आपके राह में रुकावट है तो अल्ताफ हुसैन के गरीब खाने पे आ जाइए। कोई जागीरदार का बाप की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं करेगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि इन्हें कई बार कत्ल करने की कोशिश की गई, साथियों के कहने पर जिला वतनी इख्तियार की, वतन से बाहर गया तो दुश्मन खुश हुए कि MQM खत्म हो गई, लेकिन मुखलिस साथियों की बदौलत MQM आज पहले से ज्यादा मजबूत है। मुतहदा सरबराह अल्ताफ हुसैन चयो आहे त बलोच अॻवान अख्तर मेंगल खे जेको स्क्रिप्ट ॾिनो वियो आहे हू उन मूजिब ई मुलाक़ातूं करे रहियो आहे। बलोच अॻवान साणनि मिलनि या न मिलनि, संदन हिमायत जारी रखी वेंदी। कराची में लाल किले ग्राउंड ते कोठायल तकरीब खे लंडन मां टेलीफोनिक खिताब कंदे अल्ताफ हुसैन चयो त मुतहदा अॻवाननि बाबर गौरी, हैदर अब्बास रिज़वी अख्तर मेंगल सां मुलाक़ात लाइ राब्तो कयो, जंहिं ते हुन चयो त हू सुभाणे दुबई में हूंदो, पर बलोच अॻवान अञा ताईं पाकिस्तान में मौजूद आहे। हुन चयो त बलोचनि जे क़त्लेआम ख़िलाफ़ हुन ई सभ खां पहिरियां आवाज़ उथारियो हुयो ऐं रैली पिणु कढी वई, पर हाणे हू अख्तर मेंगल जी मजबूरी खे सम्झनि था। मुतहदा सरबराह चयो त मुल्क में संदसि वजूद बर्दाश्त न कयो वियो ऐं खेसि क़त्ल करण जी साज़िश बि कई वई, जंहिं करे हू साथियुनि जे ज़ोर भरण ते जलावतन थियो। अल्ताफ हुसैन चयो त सिंध में पसंद जो परणो कंदड़नि खे कारोकारी करार ॾेई क़त्ल कयो वञे थो। हुन चयो त हू कारोकारीअ जे ख़िलाफ़ आहिनि ऐं 10 खां वधीक कारे इल्ज़ाम हेठि आयल जोड़नि खे MQM पनाह ॾिनी। अल्ताफ हुसैन चयो त सिंध जा जेकी नौजवान छोकिरियूं ऐं छोकिरा शरई हिसाब सां निकाह करण चाहिनि था उहे वटन अचनि, जंहिं बात खे को जागीरदार या वडेरो रोके न सघंदो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन कहते हैं कि हुकूमत बलोचों के मुतालबात को पूरा करने के लिए फौरी इक़दाम करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद ने कराची में कारकुनों से टेलीफोनिक खिताब करते हुए कहा कि हमारी जद्दोजहद गरीब और मुतवस्सित तबके की हुक्मरानी के लिए है। इस वक्त बलोचिस्तान का मसला संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। हुकूमत बलोचों के मुतालबात को संजीदगी से ले, इस मसले पर ताखीर मुल्क के मुफाद में नहीं। उन्होंने कहा कि MQM ने बलूचिस्तान के मसले पर सबसे पहले रैली निकाली। लापता अफराद का मामला अदालती अहकामात के मुताबिक हल होना चाहिए। हमने मशरकी पाकिस्तान के सहाने से कोई सबक नहीं हासिल किया। अकबर बुख्ती के कत्ल पर हमने भरपूर एहतजाज किया था। सरदार अख्तर मेंगल के मुतालबात की हिमायत करते हैं। MQM का वफ्द जल्द सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात करेगा। सरदार अख्तर मेंगल की मुलाकातों के हवाले से MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने इंकशाफ किया है कि अख्तर मेंगल ने दुबई रवानगी का कहकर MQM के वक्त से मुलाकात से इनकार कर दिया। MQM से मुलाकात इनके स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं तो वो कैसे मिल सकते हैं। कराची में नकीब इनकलाब की तकरीब से खिताब करते हुए MQM के कायद अल्ताफ हुसैन ने कहा कि बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल ने MQM के वफ्द को मिलने से ये कहकर इनकार कर दिया कि वो दुबई जा रहे हैं, जबकि वो इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल ने नवाज शरीफ, इमरान खान और यार मोहम्मद रिंद से मुलाकात की है। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि वो इस बात से नाराज नहीं क्योंकि अख्तर मेंगल की मजबूरियां हैं। MQM से मुलाकात इनके स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है तो वो कैसे मिल सकते हैं। हम सुबह जा रहे हैं, टाइम नहीं है, तो मैंने कहा नाराज होने की जरूरत नहीं है, वो मिले या न मिले उनकी हिमायत भी जारी रहेगी।
الطاف حسین کا کہنا تھا کہ نقیب انقلاب MQM کی جہد مسلسل کی کہانی ہے. سندھ میں خواتین کے خلاف ظالمانہ اور فرسودہ رسومات ہیں. MQM نے جاگیرداروں کے ستائے عوام کو تحفظ فراہم کیا. ان کا کہنا تھا کہ MQM کے انقلاب کی آواز سندھ سے نکل کر پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان تک پہنچ رہی ہے. MQM کے خلاف ریاستی آپریشن کیا گیا. انہیں قتل کرنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں بلکہ ساتھیوں کے کہنے پر جلا وطن ہوئے.